So let's start with the next chapter, that is nothing but mensuration. Mensuration से हम start करने वाले. Now what we are going to study in this chapter is we are going to study different objects जिनका हमें एरिया निकालना होगा, पेरीमीटर निकालना होगा, ठीक है, वॉल्यूम निकालना होगा. सो दैट इज ऑल रिलेटेड टू मेजरमेंट. हम सारा मेजरमेंट के रिलेटेड पढ़ने वाले हैं, ठीक है, सारा का सारा मेजरमेंट के रिलेटेड वी आर गोइंग टू स्टडी. ओके, सो द फर्स्ट फिगर दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन टर्म्स ऑफ मेंसुरेशन इज, ये सारी चीजें हम ऑलरेडी अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स में पढ़ चुके हैं. कौन सी पढ़ चुके हैं? क्वाड्रिलेटरल्स के रिलेटेड, क्वाड्रिलेटरल्स रिलेटेड एरिया एंड पेरीमीटर, ये सारा हमने अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स में किया हुआ है. I'll once again rewrite the formulas, you also write it for me. तो सबसे पहले फिगर जो हम स्टडी करने वाले हैं that will be parallelogram. पैरेललोग्राम का मैं इधर फिगर लिखता हूँ, ठीक है ना, आप भी मेरे साथ एक टेबल बना लो. दिस इज अ फिगर फॉर यू and here you will have area and here you will be having the perimeter of that figure. So if I draw parallelogram, something like this is there. Let's say this is your base 1. So accordingly on that base 1 the height might be h1. Let's take base 2. So on this base there will be another height which is h2. So area of the parallelogram will be half. देखो area of parallelogram हो जाएगा, not half, this will be b1 h1, or you can use a formula b2 h2. Now depending upon the base which has been given to you, you are supposed to find out the height. Okay, so if a parallelogram is given, you have b1, so accordingly height you have to take. If you have base 2, you are supposed to take height of second part. Yes, and what will be the perimeter? That will be 2 times of b1 plus b2. दोनों का एक एक बार सम ले लेंगे, b1 एक बार, b2 एक बार, फिर वापस से b1 एक बार, b2 एक बार. तो जो नेट पेरीमीटर हो जाएगा वो 2 times b1 plus b2 हो जाएगा. Is it clear? Next, we'll go with the second figure. सबको clear है पहला? Second that we are going to study is rhombus. मेरी आवाज आ रही है सबको clear? Yes. Now, rhombus is a parallelogram. So when I say rhombus is a parallelogram, you can use the formula of parallelogram. Also, there's something in rhombus. What is there is these diagonals meet at 90 degrees. ये diagonals भी 90 पे मिलते हैं और ये bisect भी होते हैं. Okay, so let's say this is diagonal का length. इसका formula होता है half d1 d2. Yeah, what is the area of this? It's half d1 d2. मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? नीति मेरी आवाज आ रही है? Yes sir, आ रही है. वैनिया मेरी आवाज आ रही है? Yes sir. Kashish, what you do is you just disconnect and then again come into the meeting. ठीक है, आप एक बार निकल के वापस से ज्वाइन करने की कोशिश करिए. Okay, चलिए. So half of d1 d2, that's the area of a rhombus. Especially if it's a rhombus, you can also go for this formula. Or if you know the base and you know the height, parallelogram का formula भी use कर सकते हैं आप. ठीक है, is it clear? जैसे ये मान लो d1 by 2 है, ये भी d1 by 2 है, तो ऊपर वाले ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ d1 by 2 इंटू d2, और नीचे वाले ट्राइंगल का भी वही होगा, तो इंटू 2 कर दो आप, तो डायरेक्टली हाफ d1 d2 आ जाएगा. ये हम डेरिवेशन कर चुके हैं जब हम अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल पढ़ रहे थे. Now if I'm talking about the perimeter, how do you write the perimeter of this? It is same. Let's say this is your b1 and this is your base 2 b2. So the perimeter becomes 2 times of b1 plus b2. ठीक है, तो सारा लिखते चलो टेबल आप, कोई भी फॉर्मूला कभी भी काम आ सकता है. थर्ड द फिगर दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज रेक्टेंगल. तीसरा जो फिगर है वो रेक्टेंगल है. तो रेक्टेंगल में क्या होता है? ऑलरेडी 90 डिग्रीज मालूम है आपको. ये एक लेंथ होता है, ब्रेड्थ होता है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और इसका पेरीमीटर हो जाएगा 2l plus b. नेक्स्ट जो फोर्थ फिगर हम है पढ़ने वाले, दैट इज अ स्क्वायर. ठीक है ना, सारे शेप्स लिखते चलो फटाफट फटाफट. तो फोर्थ जो स्क्वायर है, स्क्वायर में सारी चीजें साइड्स एक इक्वल लेंथ की होती है, ए ए ए ए. इसका एरिया हो जाएगा a स्क्वायर और पेरीमीटर हो जाएगा 4a.
किसी को किसी में भी डाउट है तो प्लीज लेट मी नो, ठीक है। फिफ्थ इज नथिंग बट ट्रपीजियम, ये सबसे खतरनाक है, इसी को हम 9th में भी पढ़ेंगे। ट्रपीजियम का एरिया निकालते कैसे, ठीक है ना। देखो अब ट्रपीजियम होता क्या है देखो जो फर्स्ट कैटेगरी आ सकती है ट्रपीजियम में वो ऐसे हो सकता है, जिसमें आपको ए पता है, बी पता है, और इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेट्स से एच पता है। सो व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रपीजियम, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स दैट इज ए प्लस बी इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। और इसका पेरीमीटर अगर निकालना है तो हमको ये वाला साइड और ये वाला साइड भी मालूम होना चाहिए। तो मान लो ये वाला साइड लेंथ सी है और ये वाला साइड लेंथ डी है, तो फोर साइडेड फिगर का पेरीमीटर कैसे निकालोगे आप। सी आई एम हाइलाइटिंग दिस इज सी फॉर यू, दिस इज डी फॉर यू, दिस इज ए फॉर यू, दिस इज बी फॉर यू। Adding all sides. यस, तो पेरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट जो सेकेंड कैटेगरी ऑफ ट्रपीजियम होगा उसमें क्या होने वाला है, उसमें आपको साइड्स पता है सारी की सारी। लेट्स से ये आपको ए लेंथ पता है, बी लेंथ पता है, सी लेंथ पता है, डी पता है। व्हाट यू डोंट हैव इज यू डोंट नो द हाइट। आपको इसका हाइट नहीं पता, तो इसमें क्या करेंगे हम, प्रोसीजर फॉलो करेंगे। देयर इज अ प्रोसीजर व्हिच वी विल फॉलो। तो अभी इसको हम पॉज पे रखते हैं, प्रोसीजर हम बाद में सीखेंगे, ठीक है। इधर लिख लो आप ब्रैकेट में, यूज ऑफ हेरॉन्स फॉर्मूला, हेरॉन्स फॉर्मूले सीखेंगे, उसके बाद हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट, सो दिस इज सेकंड फिगर। अब इसके बाद जो आ जाता है हमारे पास क्वाड्रिलेटरल, यहाँ कंप्लीट हो गया। ये क्या हो गया, देखो यहाँ पे हमने क्वाड्रिलेटरल से शुरू किया था फर्स्ट वाला सेक्शन, ये हमने पूरे क्वाड्रिलेटरल्स अंडरस्टैंड कर लिए, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रेपीजियम का क्या होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, एक जनरल क्वाड्रिलेटरल आ गया, मान लो जनरल फिगर, जनरल फोर साइडेड फिगर, जैसे कोई भी एक रैंडम फिगर है आपके पास, तो इसका एरिया निकालने का तरीका क्या है। एक मान लेते हैं ABCD फिगर है, तो इसका एरिया कैसे निकाला जाता है, एक डायगोनल को ज्वाइन करते हैं और उसकी अपोजिट वर्टिसेस से हम परपेंडिकुलर्स ड्रॉप करते हैं, और लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर मान लेते हैं यहाँ पे L1 है, यहाँ पे L2 है, और ये डायगोनल D है। तो एरिया ऑफ फोर साइडेड फिगर ABCD इस केसेस में कैसे लिखा जाएगा, दोनों ट्राइंगल्स का एरिया, तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल क्या होता है, हाफ बेस दैट इज नथिंग बट D, और हाइट होती है L1, ठीक है। सिमिलरली दूसरे का एरिया क्या हो गया, हाफ D L2, तो यहाँ से मेरे पास फॉर्मूला क्या आ गया, हाफ D आउटसाइड L1 प्लस L2, मतलब L1 is the length of perpendicular from a vertex to that diagonal, L2 is a perpendicular from another opposite vertex to that diagonal. Is it clear? प्लीज इंटरेक्ट करते रहें, आपको कहीं पे अगर नहीं समझ आ रहा है तो प्लीज आस्क मी। इज इट क्लियर? Can you explain again? कहाँ से बताऊं बेटा, बताओ। Sir, starting से. स्टार्टिंग से, कौन सा स्टार्टिंग से, इसी का ट्रपी, इसका फोर साइडेड फिगर का जनरल। Yes, sir. देखो हमने क्या करा, एक फोर साइडेड फिगर गिवन था, तो हमने एक डायगोनल को ज्वाइन कर दिया, फिर इस अपोजिट वर्टेक्स से इस डायगोनल पे परपेंडिकुलर खींचा, और इस अपोजिट वर्टेक्स से इस डायगोनल पे परपेंडिकुलर खींचा, ओके। Yes. और उन लेंथ परपेंडिकुलर्स की लेंथ आपको मालूम होनी चाहिए, एक की L1 लेंथ है, एक की L2 है। Yes. डायगोनल आपने बनाया, उसका लेंथ भी D आपको मालूम होना चाहिए। Yes. एरिया लिखने के लिए आप क्या करोगे, ऊपर वाले ट्राइंगल का एरिया दैट इज हाफ ऑफ DL1, और नीचे वाले का एरिया हाफ ऑफ DL2। अब हाफ Yes. की कॉमन निकाल दिया, L1 प्लस L2 आ गया, Half T. Yes, sir. सही है। Sir. अच्छा सिमिलरली अगर मुझे, हाँ बेटा बताओ बताओ। क्या बोल रहे हो और बताओ। यस, इज इट क्लियर, यहाँ तक सबको क्लियर है। Yes, sir. अच्छा चलो, अब एक और चीज़ मैं बताने वाला हूँ इसके बाद। ये जनरल फोर साइडेड फिगर का है, अगर कोई भी जनरल पॉलीगन आ जाता है, जनरल पॉलीगन टू यू गिवन टू यू, अगर एक जनरल पॉलीगन दिया हुआ है, मान लेते हैं कुछ 5-6 साइड का फिगर है, दिस इज 6 साइडेड फिगर, ठीक है। तो अब ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको दिए हुए होंगे तो कुछ ना कुछ ऐसा पैरामीटर आपको दिया होगा जिससे आप निकाल पाओ, जैसे कि फॉर एग्जांपल इनको ज्वाइन कर दिया हमने, ठीक है, इनको ज्वाइन कर दिया हमने, इनको ज्वाइन कर दिया हमने, तो हमने इनको ट्राइंगल्स में कन्वर्ट कर दिया,
मैं अप्रोच बता रहा हूँ, ठीक है। वी हैव कन्वर्टेड देम इनटू ट्रायंगल्स, और इफ वी कैन अंडरस्टैंड, मतलब अगर ये रेगुलर फिगर है तो वी कैन ऑल्सो कन्वर्ट देम इनटू ट्रेपीजियम्स, हम इनको ट्रेपीजियम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और वहां से हम एरिया ऐड करके निकालेंगे, एरिया एडिशन टू गेट द कंप्लीट एरिया। क्लियर? पूरा एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, छोटे छोटे पार्ट्स के जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं उनके एरियाज को ऐड करके पूरे नेट एरिया हम निकालेंगे गिवन फिगर का। इज इट क्लियर? इसके ऊपर मैं बहुत सारे क्वेश्चंस आपको करवाने वाला हूँ, सिर्फ हम अभी थियोरी कंप्लीट कर रहे हैं, इसके बाद सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। ओके, तो एक जनरल पॉलीगन हो गया। नेक्स्ट, इसके बाद हम अगर अंडरस्टैंड करते हैं तो ट्राइंगल के बारे में समझते हैं, ट्रायंगल। ठीक है, देखो नहीं पता चल रहा है तो प्लीज लेट मी नो, वरना मैं तो चलता जाऊंगा तो पता भी नहीं चलेगा मुझे कि आपको समझ आया कि नहीं आया। ठीक है, अभी हम ट्राइंगल की बात करते हैं। तो सबसे पहला, ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए मुझे क्या पता है, लेट्स से जैसे ट्राइंगल एबीसी, ए से मैंने परपेंडिकुलर खींच लिया बीसी के ऊपर, लेट्स दैट पॉइंट इज डी, तो एरिया का फर्स्ट फॉर्मूला हो जाएगा हाफ बेस इज नथिंग बट बीसी एंड हाइट इज एडी। ठीक है, तो सबसे पहला जो जनरल फॉर्मूला हम यूज करते हैं वो करते हैं हाफ बेस इंटू हाइट। इज इट क्लियर? क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, हाफ बेस इंटू हाइट। अच्छा, नेक्स्ट, तो बेटा ये फॉर्मूला आप तभी यूज कर सकते हो जिस पैरामीटर में हमारे पास आंसर है वो पैरामीटर्स होने चाहिए ना। एक ट्राइंगल के अंदर आपको हाइट मालूम होना चाहिए, ट्राइंगल के अंदर आपको बेस मालूम होना चाहिए। ठीक है, जो दूसरा फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं थोड़ा अभी अटपटा लग सकता है, लेकिन ये फॉर्मूला अगर आप अभी सीख लो तो 9th ग्रेड में आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ये फॉर्मूला है हेरॉन्स का फॉर्मूला, हेरॉन्स फॉर्मूला। अच्छा, तो हेरॉन्स फॉर्मूले काम कैसे आता है और हेरॉन्स फॉर्मूला पढ़ते क्यों है? हेरॉन्स फॉर्मूला इसीलिए पढ़ते हैं क्योंकि अगर एक ट्राइंगल आपके पास दिया हुआ है जिसकी साइड्स आपको मालूम है, हाइट मालूम नहीं है, तो लेट्स से ट्राइंगल एबीसी है, मुझे मालूम है कि ये लेंथ ए लेंथ की है, ये ट्राइंगल की जो साइड है वो बी लेंथ है, और ये जो ट्राइंगल की साइड है वो सी लेंथ है। ठीक है ना, एक ट्राइंगल है मेरे पास एबीसी जिसकी साइड्स की लेंथ मुझे मालूम है, एबीसी, ए लेंथ, बी लेंथ और सी लेंथ। अब अगर मुझे इसका एरिया निकालना है तो मेरे पास हाइट नहीं है, तो मैं हाइट कैसे निकालूंगा? तो हम इस फॉर्मूला को बेस इंटू हाइट वाले से करेंगे ही नहीं। हम इस क्वेश्चन को कैसे करने वाले हैं, हेरॉन्स फॉर्मूला से। सो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज अंडर रूट ऑफ, ध्यान समझना, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, अब इसमें सर ए तो पता है हमें क्या है, बी लेंथ भी पता है हमें, सी लेंथ भी पता है, अब ये एस क्या है, व्हाट इज दिस एस? तो अभी मैं वो बताता हूँ आपको। एस इज नथिंग बट सेमी पेरीमीटर। एस किसको यूज करते हैं, सेमी पेरीमीटर को यूज करते हैं, और वो कितना होता है, ए प्लस बी प्लस सी होल डिवाइड बाई 2। इज इट क्लियर? एस होता है आपका ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। ओके, तो ये फॉर्मूला को अभी आप याद कर लेंगे, अंडर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और ये हो जाएगा एस इज नथिंग बट ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। So first we have to find S and then we have to do this sum. यस, अभी हम एक क्वेश्चन कर लेंगे इसी के ऊपर, हेरॉन्स फार्मूला को कैसे यूज किया जाएगा। लेट्स राइट अ क्वेश्चन। ठीक है ना, पहले फॉर्मूला लिख लो आप, फिर हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। Sir, written. Let the sides of the triangle are, let the sides of the triangle are 10 centimeter, 10 centimeter and 12 centimeter. Find the area using Heron's formulae. ठीक है ना, तो इसका एरिया हम हेरॉन से निकालेंगे, और अगर तुम देखें तो आइसोसेलेस है तो हम इसको बेस इंटू हाइट से भी निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो पहले आप हेरॉन से निकालो, हेरॉन्स को यूज करेंगे। ठीक है, ये तो आइसोसेलेस स्पेशल केस आ गया, अगर आइसोसेलेस नहीं होता तो भी हेरॉन से एरिया निकल जाता।
Sir, 2304. नहीं, क्यों इतना ज्यादा एरिया कैसे आ रहा है? Yes, sir. 2304. No, sir. No, sir. देखो, सबसे पहले s निकालो। फर्स्ट टास्क इन द क्वेश्चन इज फाइंड आउट s. व्हाट इज s? सम ऑफ द साइड्स बाय 2. So it is 10 plus 10 plus 12 by 2. 20 plus this is 12, 36 by 2, 32 by 2, 16. that is 16. Yes. Hmm. So semi-perimeter comes out to be 16. So what is s minus a? That is 16 minus 10. That gives you 6. S minus b, that is again 16 minus 10. That gives you 6. Yes, Vanya का correct answer आ गया मेरे पास. S minus c, that is 16 minus 12. That is 4. Now area of triangle is under root of s into s minus a, s minus b. पंत मेरी आवाज आ रही है? अच्छा, okay, under root. Yes, I not do of है ना? 2304. s into s minus a, s minus b, s minus c. s कितना है आपके पास? 16 है. s minus a 6 है, s minus b 6 है, s minus c 4 है. देखो फॉर्मूला को यूज करते टाइम एक क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है, कभी भी रूट के अंदर वाली चीज मल्टीप्लाई मत करना, क्योंकि आपको स्क्वायर रूट करना है. तो चीजों को बाहर निकालो, तो 2 6 में से एक 6 बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट के. 16 का स्क्वायर रूट 4 बाहर आ जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 बाहर आ जाएगा. तो योर एरिया वुड बी 48 सेंटीमीटर स्क्वायर. इज इट क्लियर? एरिया कितना हो जाएगा आपका? 48 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया हो जाएगा. इज इट क्लियर? पंत? Yes, sir. ठीक है ना? पंत समझ आ रहा है तुमको सब क्या बता रहा हूँ मैं? यस सर. पक्का? यस सर. चलो डन. तो हिरोन्स फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं समझ आ गया आपको? 4 और 2 वो कैसे निकाला? कौन सा? ये 16 में से 4 बाहर आना बेटा. 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 4. 4 Yes, का sir. स्क्वायर रूट 2 और 2 6 है, तो एक स्क्वायर रूट के लिए एक बाहर आएगा ना 2 में से, Okay, sir. Yes, understood. है ना? कभी भी हम लोग स्क्वायर रूट के अंदर वाली चीजें. चलो अब एक चीज और, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं. लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन. ठीक है ना? एक और क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए हम करने वाले हैं. लेट द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर and 15 centimeter. Sides of the triangle are 13, 14 and 50 centimeter. Find the area of the triangle. Sides of the triangle are 13, 14 and 15. Find the area of the triangle. Sir, 86 86. centimeters. Sir, 84. 84. I think 84 is correct. वैनिया का भी आंसर आ गया मेरे पास. पंत क्या कर रहे हो? आशीष का भी आंसर आ गया. पंत क्या कर रहे हो? उत्कर्ष
सॉल्व कर रहा हूँ, थोड़ा ही बाकी है। Yes, sir. 84. हाँ सर 84 आ रहा है। उत्कर्ष एस कितना आ रहा है? 84 एस कितना आ रहा है? एस सेमी पेरीमीटर कितना आ रहा है? मैं बताऊं सर? नहीं नहीं एक सर मिनट। सेमी पेरीमीटर कितना आ रहा है उत्कर्ष? सर फिर से आप रिपीट कर सकते हैं, क्या बोला आप? सेमी पेरीमीटर एस कितना आ रहा है? एस सर 12। एस 12 कैसे आ रहा है? सर चेक करो, फिर से चेक करो एस कितना आ रहा है। सॉरी सर 21। चलिए बिल्कुल है ना। तो तुम्हारा 84 कैसे आ रहा है? तो दिस विल बी 42/2। पंत एस माइनस ए कितना रहा है? मान लो ये आपने ए लिया, ए किसको लिया पंत तुमने? 13, ए लिया। 14 बी किसको लिया? 14, सी किसको लिया? 15, एस आ गया। ये एस माइनस ए कितना आया? 8, एस माइनस बी, 7, एस माइनस सी 6, 6 आया। एरिया का फॉर्मूला क्या लगा दिया आपने? फिर फॉर्मूला क्या है बताओ? S minus A, S minus B, S minus C. वेरी गुड। ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 21, 8, 7, 6। इसमें से 21 में से 21 को लिखो 7 3 जा, दोनों में से एक 7 बाहर निकालो। 6 को लिखो 3 इंटू 2, दोनों 3 में से एक 3 बाहर निकालो। 8 इंटू 2 को 16 लिखो, 4 बाहर निकलेगा। 84 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया आ जाएगा। इज इट क्लियर? यस सर। Yes. चलिए, तो ये हमारे लिए ट्राइंगल हो गया। ट्राइंगल का एरिया हमने ऐसे निकाल लिया। इसी का एक एप्लीकेशन में देता हूँ। फाइंड एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल of side A unit. Find the area of an equilateral triangle of side A unit length. इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया निकालना है आपको जिसकी साइड A यूनिट की है। अच्छा, बिफोर वी गो फॉर दिस, एक क्वेश्चन हमने जब ऊपर करा था, मैंने आपको बोला था कि मैं एक और चीज बताऊंगा। ये देखो, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है ना। बिफोर यू गो फॉर दिस क्वेश्चन, एक बार इसको थोड़ा ध्यान से देखो। ये जो ट्राइंगल आपको पास दिया हुआ है, ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है ना। 10, 10 और 12। तो इसको करने का एक और मेथड भी है, मैं पहले वो बता देता हूँ आपको, ताकि आप कहीं आइसोसेलेस ट्राइंगल दिखे तो ये अप्रोच पहले फॉलो करें रादर देन गोइंग फॉर हेरोन्स फॉर्मूला। देखो 10, 10 और 12 है। अगर आपने ए बी सी है, ठीक है ना, तो अगर आपने ए से परपेंडिकुलर ड्रॉप करा बी सी पे, तो होगा क्या पता है? ये दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में डिवाइड हो जाएंगे। पता है कैसे? देखो, ये एक तो 90 90, हाइपोटेनस इज इक्वल एंड इज अ कॉमन साइड। तो राइट एंगल हाइपोटेनस अंडर साइड आरएचएस से दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, तो दोनों का एरिया भी बराबर हो जाएगा। एक चीज। दूसरा मैं क्या बोल सकता हूँ, देखो, जब आइसोसेलेस ने परपेंडिकुलर डाला तो ये वाली लेंथ भी कितनी हो गई? 6। ये वाली लेंथ भी कितनी हो गई? 6। सही है। 12 को दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगी ना, 6 और 6। तो अगर मैं अब इस ट्राइंगल को आइडेंटिफाई करूं, ये वाला ट्राइंगल जो मेरी स्क्रीन के सामने दिख रहा है आपको, ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है, तो इसमें एक 10 है, एक 6 है, तो पाइथागोरस से हाइट 8 निकल जाएगी। सही है।
यस और नो? पाइथागोरस से आप हाइट 8 निकाल लोगे तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? हाफ बेस इंटू हाइट होता है, तो आपको बेस तो मालूम है 12 और हाइट भी आपने 8 निकाल लिया है, तो 4 हो जाएगा और ये 48 हो जाएगा। इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है ना? तो जब भी आइसोसेलेस दिया है तो वी विल नॉट गो फॉर हेरॉन्स। इक्विलैटरल का तो डायरेक्ट ही मैं रिजल्ट आपको बता दूंगा, वो याद ही रखें आप। इक्विलैटरल का हमेशा फॉर्मूला याद रखेंगे जो हेरॉन से निकालेंगे हम, और राइट एंगल्ड ट्राइंगल बनाएंगे आइसोसेलेस के अंदर, और वहां से हम फिर एरिया निकाल लेंगे बेस इनटू हाइट से ही। ठीक है ना? तो आइसोसेलेस और इक्विलैटरल में कभी भी हम हेरॉन्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूलास को यूज करेंगे और करेंगे जल्दी क्वेश्चन। ठीक है? बिकॉज हेरॉन्स टेक्स सम टाइम, इट टेक्स यू सम टाइम टू सॉल्व, एंड इन द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन द की इज द टाइम। जो जल्दी सॉल्व करेगा वही एग्जामिनेशन को बोल सकते हैं अच्छे से जीत जाएगा। ठीक है? क्लियर है? चलो, तो इक्विलैटरल का एरिया निकालो हेरॉन से। सर 3a square upon 4। थोड़ा सा गलत है, थोड़ा सा। जैसे देखो, आपको ट्राइंगल दिया हुआ है जिसकी साइड लेंथ ए है। यस, दिस इज ए फॉर यू, दिस इज ए फॉर यू, दिस इज ए फॉर यू। सो व्हाट विल बिकम सेमी पेरीमीटर? 3a/2 हो जाएगा 3a सेमी पेरीमीटर, a+a+a/2। अच्छा, s माइनस a कितना हो जाएगा? a/2। s माइनस b कितना हो जाएगा? a/2। s माइनस c कितना हो जाएगा? a/2। सही है? तो एरिया क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ s माइनस a, s माइनस b एंड s माइनस c। सही है? ठीक है? अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो s की वैल्यू क्या है इसके अंदर? 3a/2 है, 3a/2। नेक्स्ट s माइनस a कितना है? a/2। s माइनस b कितना है? a/2। s माइनस c कितना है? a/2। ठीक है ना? तो अगर ध्यान से देखो आप, ओके, देखो तो 2 2 2 और 2, 4 बार है तो 2 बार बाहर आ जाएगा, तो 4 नीचे आ जाएगा। ओके, अब देखो, अब ध्यान से समझना, a 2 बार है, 3 बार है, 4 बार है, तो a² बाहर आ जाएगा, तो बनेगा √3/4 a²। सही है? यस सर। नहीं तो यही बोला था आपने क्या? नहीं सर, रूट नहीं बोला था सर। है ना? तो ये हो जाएगा √3/4 a²। तो इसका डायरेक्टली फॉर्मूला आप याद रखना। ठीक है ना? आप हेरॉन्स निकालने मत बैठ जाना, इक्विलैटरल का रिजल्ट कभी चेंज नहीं करेगा, तो यही होगा। ओके, क्योंकि ए तीनों में इक्वल ही होता है। अब अगर कोई आपसे पूछता है इसको यूज कैसे करते हैं फॉर्मूला को, इफ एनीवन इज आस्किंग यू फाइंड एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, फाइंड एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 2 यूनिट्स। कशिश, क्या नहीं पता चला बेटा आपको? बताओ। सर √3। सर √3। ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा? √3/4 इंटू 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कट जाएगा तो √3 आ जाएगा आपका आंसर। सही है? तो हम डायरेक्टली फॉर्मूला का यूज Yes, करने sir. वाले हैं। इज इट क्लियर? यस। यस सर। इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं? ओके, तो ये फॉर्मूला बिल्कुल याद रखें आप, √3/4 a²। अच्छा, अब जो हमारे सीरीज में नेक्स्ट चीज हमें समझनी है वो ये समझनी है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, जो मैंने आपको बोला था ऊपर, है ना? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम जब ऑल साइड्स आर गिवन टू यू। So let's understand and take a question based on this। एक क्वेश्चन ही ले लेते हैं और उसी से हम समझते हैं कि इसको किया कैसे जाता है। ठीक है ना? एक ही क्वेश्चन करेंगे और फिर हम क्लास को कंक्लूड करेंगे। दिस विल बी प्रोबब्ली लास्ट क्वेश्चन फॉर यू। ठीक है, एक सेकंड, टेक द क्वेश्चन। देखो, the parallel sides of a trapezium are 25 centimeter and 11 centimeter, while its non-parallel sides are
while its non parallel sides are 15 centimeter and 13 centimeter, find the area of trapezium. Is it clear? चलिए, let's come to this question. Question में क्या लिखा है? The parallel sides of the trapezium are 25 and 11. तो मैं एक trapezium draw कर लेता हूँ आपके लिए पहले. ये एक trapezium है मेरे पास, ठीक है ना? This is a trapezium given to me. ठीक है? अब ये क्या बोल रहे हैं इस trapezium में? ठीक है, इस trapezium में जो non parallel sides है वो क्या है? 25 सेंटीमीटर है और 11 सेंटीमीटर है. सॉरी, पैरेलल 25 और 11 है. नॉन पैरेलल 13 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है. तो अभी आपको इसका एरिया बताना है. तो बहुत ही ध्यान से समझना. हम इसमें करते क्या है, हम इसमें ट्रेपेजियम में से फिगर बनाते हैं. क्या बनाते हैं? वन वी कंस्ट्रक्ट इज अ पैरेललोग्राम एंड सेकंड दैट वी ट्राई टू कंस्ट्रक्ट इज अ ट्रायंगल. ठीक है ना? एक ट्रेपेजियम में से दो चीज बनाते हैं, एक पैरेललोग्राम बनाते हैं, एक ट्रायंगल बनाते हैं. तो वो कैसे मैं बनाने वाला हूँ बहुत ध्यान से देखना आप. मैं यहाँ पे एक पैरेलल साइड कंस्ट्रक्ट करने वाला हूँ. किसके पता है? इसके. तो ये तो पैरेलल थी ही सामने वाली. अब एक कंस्ट्रक्शन मैंने पैरेलल से कर दिया. लेट्स से दिस इज ए बी सी डी. ये पॉइंट ई ले लेते हैं हम. ठीक है ना? दिस इज पॉइंट ई. सो कंस्ट्रक्शन जो आप करेंगे इस कंस्ट्रक्ट बीई, कंस्ट्रक्ट बीई सच दैट बीई इज पैरेलल टू एडी. अच्छा, तो सर ये करने से हुआ क्या? अब अगर आपने पैरेलल कंस्ट्रक्ट कर दिया सिर्फ एक साइड को, तो व्हाट डिड इट डू इज दिस इज नथिंग बट नाउ पैरेललोग्राम फॉर यू. ये क्या है आपके लिए? पैरेललोग्राम है. और ये क्या है? ट्रायंगल है. नाउ मुझे एक चीज बताओ, जब पैरेललोग्राम आपने कंस्ट्रक्ट कर दिया, सर कैसे पैरेललोग्राम हुआ? वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड वाज पैरेलल, second pair of opposite side you have constructed parallel, so both the pair of opposite sides are parallel, so it's a parallelogram. Now when you have constructed a parallelogram, some things have happened automatically. कुछ चीजें हो गई. क्या हो गई? ये साइड 11 की थी तो ये भी साइड 11 की हो गई. अब अगर ये 11 की हो गई, ये 25 था तो ये 14 की ऑटोमेटिकली हो गई. नेक्स्ट, ये वाली साइड 13 की थी तो ये वाली साइड भी 13 की कंस्ट्रक्ट हो गई. अब ये 13 है, ये 14 है, तो ऑटोमेटिकली ये तो फिगर में 15 दिया हुआ ही है. तो क्या 13, 14, 15 वाले ट्राइंगल का एरिया नहीं निकाल सकते आप? निकाल सकते हो. Yes, sir. अभी ऊपर निकाल के आओ. सो Yes, फर्स्ट sir. टास्क विल बी कंस्ट्रक्टिंग BE parallel to ABCD such that you make a parallelogram and a triangle. नेक्स्ट, सेकेंड स्टेप विल बी एरिया ऑफ ट्राइंगल. सेकेंड स्टेप आप क्या करोगे? एरिया ट्राइंगल का ढूंढोगे. वो अभी आप ऊपर निकाल चुके हो हिरॉन्स से. हिरॉन से अभी आपने 13, 14, 15 का एरिया निकाला. कितना था? 84 सेंटीमीटर स्क्वायर था. यस. अब मुझे क्या करना है पता है? मुझे चीज पता है, एरिया का फॉर्मूला इस तरीके से भी लिखा जाता है. अगर ये मैं परपेंडिकुलर हाइट मानू, कंस्ट्रक्शन मैंने करा है, ये एफ पॉइंट मान लेता हूँ. ठीक है ना? तो मैं क्या बोलता हूँ, एरिया का दूसरा फॉर्मूला क्या होता है? हाफ बेस इज नथिंग बट दिस. ट्राइंगल के लिए बेस ये है. और ये कितना होगा बताओ बेटा? ये देखो, ये 11 हो गया तो मैं बोल सकता हूँ ये बेस 14 था मेरे पास, तो एरिया क्या हो जाएगा? हाफ बेस दैट इज 14 एंड हाइट इज अननोन. ये h मुझे ढूंढना है. h अगर अननोन है तो ये कितना एरिया था? 84 था. तो 14 1 जा एंड 14 6 जा. सो हाइट विल बी 12. तो थर्ड स्टेप में मुझे क्या करना है? एरिया को बेस इनटू हाइट के फॉर्मूला से हाइट निकालना है. अब मेरा क्या काम हुआ? देखो, हाइट मेरे पास आ गई, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हो गया हाफ सम ऑफ द पैरेलल साइड्स. अब पैरेलल साइड्स कितनी है? 11 और एक है 25. और परपेंडिकुलर डिस्टेंस अभी आपने 12 निकाला है, तो दिस इज हाइट. तो ट्रेपेजियम का एरिया जानने के लिए मुझे हमेशा हाइट की जरूरत होती है, तो वो मैं इस तरीके से निकालता हूँ. एक ट्रेपेजियम को पैरेललोग्राम और ट्राइंगल में करके ट्राइंगल का एरिया हिरॉन से निकाल के हाफ बेस इनटू हाइट से इक्वेट करके ट्राइंगल की हाइट मिल गई. तो जो ट्राइंगल की हाइट होगी वो पूरे ट्रेपेजियम की भी हाइट होगी. पता है, मैंने आपको ये क्वाड्रिलेटरल्स में बताया था कि दो पैरेलल लाइन के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा सेम रहता है, वो कहीं से भी लो आप. तो आप चाहो तो यहाँ से ले लो, यहाँ से ले लो, बट हाइट तो हमेशा सेम ही रहेगी. तो अब यहाँ से एरिया आ जाएगा आपके पास. सो लेफ्ट 36 into 6 दैट विल बी 216 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो नोट कर लो, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आ जाएगा 216 सेंटीमीटर स्क्वायर.
इज इट क्लियर? सही है, सब Yes, बच्चों को sir. समझ आ गया? तो बस आज की क्लास को हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं. थैंक यू फॉर बीइंग देयर. नेक्स्ट टाइम वी विल बी स्टडीइंग मोर फिगर्स. ओके.